عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت. امہ آئے مبارک یسن میں تہ برو کن تلاوت کر امیک گۄڈنیُک حصہ کریو اسہ پتمس درسس مز مکمل. گۄڈنکس حصس مز پوٚر اسہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریو اہل ایمانن امہ کتھ ہند حکم کہ جب آپ نشے کی حالت میں ہو تو اس حالت میں آپ نماز کے قریب مت جاؤ. اور یہ ونیو میں کہ زن شرابک حکم یہ تدریجن آمت قرآن پاکس مز بہرحال نازل کرنے. پہلے قرآن پاک نے شراب کی جو خباثت ہے یا اس کی نفرت لوگوں کو دلائی، پھر نماز کے اوقات میں اس کو پینے سے لوگوں کو روکا، اور سورہ انعامس مز انشاءاللہ الرحمن یم ساتن اس پڑھو پتہ امیک حکم باضابطہ حرام گھنو کہ یہ انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوہ کہ یہ شیطان کے کام ہیں، ان سے بچو، ان سے دور رہو. بہرحال یہ قرآن یہ زن اسلامک مزاج کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لوگوں کے مزاجوں کو آہستہ آہستہ اس کام کے لیے تیار کیا، پھر جا کر کسی چیز کو حرام کیا. بہرحال گۄڈنِکِس اتھ حصس مز پوٚر اسہِ کہ اے لوگو جب آپ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت پھٹو. ات کیا شان نزول بہرحال وہ ہم نے پڑھ لیا. دویم یُس زن حکم ات مز آو، ایک تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، دوسرا جب آپ جنابت کی حالت میں ہوں یعنی ییٚلہِ اکھ انسان ییٚمِس پٮ۪ٹھ غسل فرض آسہِ گوٚمُت بہرحال سُہ تہِ ہیٚکہِ نہٕ نماز توٚتامتھ پٔرِتھ کینٛہہ یوٚتامتھ نہٕ سُہ جنابت کی حالتہِ پٮ۪ٹھ پاک گژھنہٕ خٲطرٕ غسل کرِ. بہرحال غسل کا کیا طریقہ ہے انشاءاللہ المستعان اس کو ہم آگے چل کر پڑھیں گے. یہ سورہ شریفس مز چھ سہ. تو اس کے بعد کہا گیا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. ہاں البتہ اگر ضرورت کے پیش نظر آپ کو مسجد میں سے گزرنا پڑے. یہ بنیادی طور پر یہ آیک ٹکڑ یہ زن کی صحاب صاحب تمن ہند گھر اس بالکل مسجد نبوی ست منسلک، اور انہیں گھر میں داخل ہونے کے لیے مسجد نبوی سے ہو کے گزرنا پڑتا تھا، بھی اس نے کہاں وتھا. تو ان کے لیے یہ سہولت تھی کہ اگر آپ کو مجبوراً جنابت کی حالت میں مسجد سے گزرنا پڑے تو گزر سکتے ہیں، مگر تات مز ہیکن نہ تم ٹھہرت مسجد ہندس حالتس مز یا جنابت کس حالتس مز. یہی مسئلہ معتکف کے لیے بھی ہے. یس انسان اعتکافس مز آس اگر رات کو اس پر غسل جنابت واجب ہو جائے، چاہے بے خوابی کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے، اس پر بھی یہی حکم ہے کہ جو ہی وہ بہرحال اس کا شکار ہو جائے یا جنابت کا غسل اس پر واجب ہو جائے فوراً وہ مسجد سے نکل جائے اور غسل کرے. وہ ام سے طور فکری کہ نکل سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں مسجد سے مگر ٹھہر نہیں سکتے ہیں. یہ گۄڈنیُک حصہ آو اتھ مز. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا احسان اس امت پر کر لیا، وہ ہے تیمم کا احسان. کہ وہ لوگ جو مریض ہوں یا وہ لوگ جو سفر میں ہوں اور پانی ان کو نہ ملے، یا اسی طرح سے وہ لوگ جنہوں نے اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کی ہو اور اب ان پر غسل واجب ہو لیکن ان کے پاس پانی نہ ہو غسل کے لیے، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم سہولت نازل کی. سہ کس حکم؟ تیممک حکم. تیمم کن حالات میں یہ آیت کس حالات میں نازل ہوئی اس کا شان نزول بھی ہم نے پڑھ لیا. اور یہ تہ وون میں کہ تیمم کم ساتن چھ جائز. بہرحال پھر سے میں تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا کہ کم کم ساتھ تیمم جائز.
एक तयम्मुम उस वक्त जायज है जब पानी 1 मील की मुसाफत पर चारों तरफ से दूर हो, यानी 1.5 किलोमीटर या आज वनो यूता दूर आए आब, तो इस सूरत में इंसान को बहरहाल इजाजत शरीयत दी है कि वो ये जन क्या तयम्मुम कर सकता है। इथे पठनस कह शख्स मरीज और उसको डॉक्टर ने सख्ती के साथ पानी इस्तेमाल करने से मना किया है, ताकि क्योंकि इसका मर्ज बढ़ सकता है या इसका कोई उज़ू खराब हो सकता है या इसकी बीमारी में शिद्दत पैदा हो सकती है, तो उस इंसान को भी शरीयत ने तयम्मुम की इजाजत दी है। त्रेयम वयम है कि पानी मौजूद है लेकिन पानी तक इसकी पहुंच वो उसको नहीं है, जैसे बाहर जंगली जानवरों का खतरा है, बाहर दुश्मन का खतरा है, या कोई कुआं ऐसा है कि उसमें ये उतर नहीं सकता है और वहां से पानी खींचने के लिए कोई डोर नहीं है, बहरहाल सारे, या कोई इंसान ट्रेन में है, ट्रेन में पानी नहीं है लेकिन ये किसी समंदर के ऊपर से या किसी दरिया के ऊपर से ट्रेन जा रही है, अगरचे पानी बिल्कुल नजदीक है मगर इस पर इसे कुदरत हासिल, तो इन हालात में भी एक इंसान क्या कर सकता है, तयम्मुम कर सकता है। अलबत्ता अत मज वो मैं अख चीज खसूसियत सान युस जन अक्सर पन्न घर मज वुचन कि अगर कोई इंसान बीमार है मगर उसको पानी इस्तेमाल करने की इजाजत डॉक्टर ने दी है, तमिस गछ आब सत उसके लिए वुजू करना लाजिम है अगर उसको कोई बाथरूम तक या पानी तक पहुंचाने वाला हो। अगर सो मौजूर और घर तह कहीं मौजूद, बहरहाल उस वक्त वो तयम्मुम कर सकता है अगर वक्त निकल जाता है नमाज का। अत मज थो ब्या याद, ये मसला थोड़ा बहुत यह से ताल्लुक था, लेकिन ये मैं इसलिए बताऊंगा तिक घर मज तमिच तालीम। हमारी माएँ बहनें जो खास अयाम से गुजरती हैं महीने में, उसके बाद उन पर नहाना लाजिम हो जाता है, यानी सह फर्ज गुसल ये पे जनाबत गुसल तिथे पे सह तुम पे गुसल वाजिब। और ये गुसल जो है, गुसल या पता गुसल तेरी पढ़ कि गुसल जब होता है उसमें 3 फराइज हैं, कुछ कुछ नाक में पानी डालना और कुल्ली करना और पूरे जिस्म या बदन पर पानी बहाना कम से कम एक बार, एक बाल बराबर भी खुशक नहीं रहना चाहिए। यह मामला कत जब एक औरत हेज से पाक हो जाए उसके लिए भी ऐसे ही वुजू करना लाजिम है, या गुस्ल करना क्या है अमिस खातिर तशी इजाजत कि अगर उस पर गुस्ल अब वो पाक हो गई इन हेज के अयाम से मगर पानी मौजूद नहीं है, पानी कह, तो गुस्ल उस वक्त उस पर फर्ज है, अब वो नमाज पढ़ सकती है। इथे पे कह जनाबत किस हालत मज मगर पानी नहीं है, तो अगर पानी नहीं है उस पर भी फिर तयम्मुम ही काफी होगा, तमिस खातिर क्या काफी गो याद है। जाओ तयम्मुम वुजुअस खातिर काफी और तयम्मुम गुस्ल के लिए भी काफी, और इन दोनों का तरीका भी सेम है, यानी अगर किसी इंसान गुस्ल वाजिब गोमुत, अब पानी नहीं है, अब वो तयम्मुम करेगा कुदरती तौर पर, तो गुस्ल के लिए भी उसी तरह तयम्मुम करना है और वुजू के लिए भी उसी तरह तयम्मुम करना है। अलबत्ता वो हेचना बता तयम्मुम तरीक, तयम्मुम के तरीके से पहले एक बात आप याद रखेंगे, तयम्मुमस मज 3 फर्ज या 3 लाजिम चीज। पहला नियत का होना, नियत लाजिम तयम्मुमस खातिर। नियत क्या है तयम्मुम के लिए, नियत लाजिम, क्यों? क्योंकि नियत से ही ये वुजू का तयम्मुम वो अलग होगा और गुस्ल का तयम्मुम अलग होगा। यमिस इंसान वुजू खातिर तयम्मुम कर तो वो नियत करेगा कि मैं ये तयम्मुम वुजू की नियत से कर रहा हूं, और जिस पर गुस्ल वाजिब होगा अगर पानी नहीं है तो वो नियत करेगा कि ए अल्लाह मैं ये तयम्मुम किसकी नियत से कर रहा हूं, गुस्ल की ये नियत से कर रहा हूं। इस फर्क, बाकी तरीका क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। त्रेयम का में वही गुस्ल तयम्मुमस मुतलिक, क्योंकि अब तो तयम्मुम का ही ये हिस्सा इस आयत का है, वो यह है कि तयम्मुम किन चीजों से होता है। याद है तयम्मुम सिर्फ मैंने कहा था मिट्टी या मिट्टी की जिन्स से बनी हुई चीजें जो होंगी, यानी मिट्टी या यजन मिर्च और मिर्च ही बनी हुई चीज सिर्फ उनसे वुजू होता है, ये तयम्मुम होता है। इसमें मिट्टी तो पहले नंबर पर, दूसरा बाजरी, रेत या चूना, यम सारी चीज मेच हिंद जिनस इनसे वुजू ये तयम्मुम हो सकता है। लोहे पर, शीशे पर या इसी तरह से कोई मेटलस पे अत पे वुजू कर, हता कि कपड़े पर भी वुजू नहीं, ये तयम्मुम नहीं होगा, तयम्मुम क्या। अलबत्ता अगर किसी चीज पर इतनी गड़द बैठी हुई है, अगर कुछ चीज पे यीचा गड़द पे कुछ टेबलस पे या कुछ बानस पे या कुछ पलवस पे या कुछ सीटस पे यीचा गड़द बैठमस कि उस पर हाथ मारने से हाथ का निशान उस पर लग जाता है, यानी तथ पे उंगजन हिंद निशान या अथुक निशान पेवन,
तो उस जैसी चीज पर भी फिर तयम्मुम हो सकता है। तवे आसियो तोह वुचमुत या बूझमुत कि लुक करन ट्रेनन मज तयम्मुम, लेकिन वो तब जायज है अगर उन सीटों पर इतनी गड़द है कि उस गड़द पर फिर इस हाथ के निशान पड़ जाते हैं, वरना तब तक उसको तयम्मुम का इंतजार करना पड़ेगा योतान तमिस मिट्टी या इसकी जिन्स की कोई चीज नहीं मिलेगी। अच्छा, दयम का थी याद है, जब हम वुजू करते हैं, यम साथ वुजू करन युस आब पत्थर पेवन तथ वन माय मुस्तमिल। माय मुस्तमिल को वो माँ कहते हैं पानी को, मुस्तमिल कहते हैं इस्तेमाल शुदा पानी। अब ये माय मुस्तमिल जो है ये पाक नहीं है, ये पान पाक है ये, मगर अब ये पाक करने वाला पानी नहीं है, ये थे याद। यानी अगर कह इंसान गुसल करन और वाजिब गुसल करन अम तलक बाल्टीन थोमुत नज तल लगित पे आब छकन पान कत मज बाल्टीन, तो जो हमारे बदन से ये पानी ये जरा अत मज पेवन ये कौन सा पानी इस पर पड़ता है, माय मुस्तमिल अथन यानी इस्तेमाल शुदा पानी। माय मुस्तमिल पान आसन पाक, यानी ये पाक है, यह मुकुर क्या। अगर ये पलवन लार तौलिया अतन थी तथ आई छिक सो तौलिया गो मुकुर क्या, या पलो थमित हंगर सत आई स्नान कर छिक ये पलो गई मुकुर क्या, तिक माय मुस्तमिल नापाक आसन। अलबत्ता माय मुस्तमिल पाक करन वो पानी क्या, यानी इससे पाकी हासिल नहीं होगी। इसका मतलब है जो पानी अब आपने बाल्टी में रखा है, अगर आप में छिक गई इससे अगर आप फिर नहाते हैं आप इस पानी से पाक नहीं होते हैं, तिकाज पानी पाक मगर इसमें पाकी की सलाहियत इस शरीयत उसूल। अच्छा, अवे गम सात वुजू को ये गुसल खसूसन यम सात जरा जनाबत गुसल कर, तो बाल्टी को एक साइड में करना चाहिए अगर भरना ही है, ताकि तथ मज गम छिक। इथे पे ब्या मसल यम सात वुजू कर नज तल रटान बुत यह पे जिवन इतनस वुजू कर नड़ वड़ अत जगस मज पेवन अमुक आब वाब पे अमी छान क्या खोर। इस माय मुस्तमिल से यह वुजू यम खोर गई पाक कहें। हाँ, पानी ये पाक है मगर इससे पाकी नहीं होती, इसलिए उसके लिए अलग पानी आपको लेना पड़ेगा वुजू खतर ये जन ये। अच्छा, अब ये तो सवाल होगा कि ये गुसल करन या वुजू करन जिस पानी से हमने गुसल या पानी किया वो अब पाक करने की सलाहियत खो देता है, वन पाक गसन रोजन ये पाक पान रोजन मगर पाकी करने सलाहियत। अलबत्ता जब मिट्टी से तयम्मुम करते हैं, मिट्टी पर एक बार अगर तयम्मुम किया क्या यह पत गसन क्या आप हकन दयम तयम्मुम कर नहीं, बल्कि मिट्टी के बारे में फुकाहा ने लिखा और हदीस में भी है कि अगर लाख बार भी एक ही मिट्टी पर हम करेंगे तयम्मुम उससे मिट्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि वो तयम्मुम सही होगा। ये मुस्तमिल गसन ये मिट्टी क्या। इसीलिए पहले जमाने में पता नहीं आज पहले जमाने में जब लोग सफरों पर जाते थे तुम तुलान मेज बॉक्स सत, ताकि अगर कहीं ऐसी जगह मिली जहां हमें पानी नहीं होगा और तथा मिट्टी की कोई जिन्स भी नहीं होगी या कुछ सवार पे तथा मिट्टी की जिन्स तुम यहाँ बॉक्स खोलन अत मेजस तथ पे त्रावन अत कर क्या तयम्मुम। क्यों? क्योंकि एक मिट्टी से हम लाखों बार हजारों बार तयम्मुम कर सकते हैं। ये गो अख मसला तयम्मुमस में। दूसरा मसला जो तयम्मुम के बारे में आप याद रखेंगे, जिन चीजों से तयम्मुम ये वुजू टूटता है उन चीजों से तयम्मुम भी टूटा है, यानी यमो चीजों सत वुजू फुटन तमो चीजों से क्या फुटन तयम्मुम। जैसे किसी ने पेशाब कर लिया यानी लकुट पेशाब बोट पेशाब रीह चोल नीर या कोई और चीज हो गई जिससे वुजू टूटता है, उन तमाम चीजों से क्या गसन तयम्मुम तो फुटन। अमे अलाव भी एक चीज से तयम्मुम फुटन, वो है कि जिस उजुर की बिना पर हमने तयम्मुम किया था अगर वो उजुर जाता रहा तो तयम्मुम खुद से टूट जाएगा। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर हम एक ऐसी बस्ती में थे जहां पानी 1 मील दूर था, अब उधर कोई जरिया नहीं है पानी हासिल का भीषण आप क्या कर इंसान तयम्मुम, मगर अब ये पहुंच गया सफर करते करते वहां नजदीक, अब पानी बिल्कुल नजदीक है, पानी मैसर हो गया, वो उजुर को रफा उजुर को दूर खुद ब खुद अब तयम्मुम की हाजत, अब यहाँ पर ये नमाज उस तयम्मुम से नहीं पढ़ सकता है। अब इसके लिए क्या करना होगा? वुजू करना होगा। गो यमो चीजों से वुजू फुटन तमो से तयम्मुम फुटन। अलबत्ता तयम्मुम भी एक चीज से फुटन, सह गो क्या कि अगर ये उजुर खतर असे तयम्मुम कोरमुत अगर सह उजुर बाकी रूद न कह बेमार अमिस डॉक्टर वो सख्ती सान मना कर चे वुजू कर गे आब से प्रॉब्लम, यह क्या कर मगर अब ये तंदुरुस्त हो गया, वह कोर अमिस खुदायन शिफा, अब तो ये उजुर नहीं रहा, तो अब इसके लिए तयम्मुम करना जायज नहीं है। अब ये क्या करेगा? गो ये तयम्मुम को अति खत्म। दूसरी बात ये याद रखिए, एक वुजू से हम कई नमाजें पढ़ सकते हैं। आगे वुजू से हको वारिया नमाज पढ़ित, अगर कंसे
तिस सलाहियत कि सह सुबह शाम तक वजू मतलब बाकी थित, वो इससे फजर भी पढ़ सकता है, असर भी पढ़ सकता है, मगरिब भी है क्या पढ़। क्या तयम्मुम से एक से ज्यादा नमाजें पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हैं। तयम्मुमस पे हको अत ज्यादा नमाज पढ़, मगर शरत यह है कि तयम्मुम के शराइत बाकी रहें, यम जन बाकी शराइत तुम गए रोजे बाकी, वरना अगर पानी मिल गया तब तो अब इसको वजू करना ही पड़ेगा, ये थे याद। अब तीसरी बात जो तयम्मुम के बारे में ये जन इंपॉर्टेंट कथ तयम्मुमस मुतलिक, वो है तयम्मुम का तरीका। तयम्मुम तरीक क्या ब्या कथ थो ये वनो बह जिमन, क्योंकि ये मसला भी हमारे यहाँ होता है। अल्लाह ताला बचाइन कह शख्सस जख्म आमुत, तुथ जख्मा कि अमिस पलस्तर कर या अमिस लोग खोरस कुन सातनस, अब इस पर गुस्ल फर्ज हो गया। मान लीजिए अमिस लोग गुस्ल फर्ज, अब इस वाले हिस्से में पानी नहीं डाल सकता है, अमिस डॉक्टर आब त्रजन या खोरस गोमुत क्या जख्म आमुत अमिस बने वने वलित। इस सूरत में इसको अगर कोई ऐसा हिस्सा है जिसको ये अलग कर सकता है, या आब पे मिसाल नड़ था यथ पठनस, या ये खोर पत्थर बह टफस मज या कुन खोर था होकुन, या खोरस कर लिफाफ आप गना आब कह। अगर ऐसा उजू कोई है उस वक्त उसको गुस्ल बाज़ाब्ता पूरा करना होगा, पूरा गुस्ल कर। अलबत्ता फिर गुस्ल खत्म करने के बाद उस लिफाफ या क्या तथ पे कर मसा, लिफाफ का नबर अगर बैंडेज बैंडेज पे कर मसा, इसका गुस्ल हो गया, अमिस गो गुस्ल ठीक पर। अलबत्ता अगर इसको सर में चोट आई है, सर अमिस अल्लाह ताला बचे कलश का ऑपरेशन हपर ये कर अत क्या गुस्ल गो अमिस पे वाजिब। अब ये कैसे गुस्ल करेगा? इस सूरत में भी ये किसी और शख्स की मदद लेगा, ये पे त्राना पान सरसी आब, कलस त्राने आब दी सरसी फश असल पटनस ये कलकस तर नकवा नारिन तड़ आब, अगर ये सही सलामत और सर पर मसा इस तरह करेगा, इसका गुस्ल हो गया। तम साथ कर कलस मसा इस अमिस गो गुस्ल बराबर। अच्छा अगर अल्लाह ताला बचन योड़ अमिस ऑपरेशन आमुत, किडनी प्रॉब्लम योड़स भी अल्लाह ताला अमिस यड़ चीरित सारे, चाहे ये औरत हो या मर्द हो, अमिस कर क्या गुस्ल, अमिस गुस्ल जनाबत या गुस्ल वाजिब गुमत। अब इस सूरत में तो ये पानी से नहीं बच सकता है, माँ है कि बचत, तो इस सूरत में ये तयम्मुम करेगा। आज सूरत में क्या करिए? तयम्मुम। अलबत्ता ये साथ में तयम्मुम करिए तो इसके लिए गुस्ल के कायम काम होगा। ये साथ में नमाज पढ़ जाए उस वक्त उसको वजू करना पड़ेगा, ठीक है, वजू आज़ा अमिस ठीक, ये तो रहता है फिक्र। अच्छा अब हम आज आखिरी बात वक्त गो वारिया, आखिरी बात वो है वजू का ये तयम्मुम का तरीका। बहरहाल तयम्मुम तरीक कि पहले इंसान नियत करेगा, ठीक है, नो नियत अत में लाजिम। नियत क्या कर? अगर गुस्ल की नियत है तो गुस्ल की नियत करेगा, अगर वजू की नियत है तो वजू की नियत करेगा। गो दयम का दयम चीज, दयम लाजिम चीज या दयम फर्ज वो है एक बार ये जमीन पर हाथ मारेगा, ये अक लट क्या जमीन पे अथ ये तुलने क्या गाड़, बल्कि इस तरह से मारेगा। और इसमें फुकहा ने लिखा है कि यमन अंगजन मुतलिक मुजबाग था थोड़ा बहुत गैप, ज्यादा गैप ये क्या अब चढ़ थाए न आम हाथ में सजदस में त्रा, इस तरह से यह हाथ मारेगा किस पर? जमीन पर। और जब पहला हाथ मारेगा अगर अत सड़ ज्यादा खच, ठीक है, कुछ साथ है तिस जमीन तजन गढ़। हाँ एक बात ये भी याद रखिए, कुरान ने लिखा है सैयदन तय्यबा, यानी ये मिट्टी पाक होनी चाहिए। ठीक है, को मतलब मिट्टी पाक होनी चाहिए, मिर्च गई साफ। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि ये मिर्च साफ क्या? इसको फुका ने कहा है अगर एम वो कि मिर्च पे कोर एमिस ब्रोट जानवर पेशाब या कहीं जानवर कर अत गंदगी या कहीं इंसान को पेशाब, इसने खुद अपनी आंखों से देखा, तो इसके लिए ये मिट्टी नापाक हो गई, वहीं हकनी आप कर क्या तयम्मुम किया। अलबत्ता बाकी ये चलते हुए जा रहा है, अब ये खुद से शक नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए सारी मिट्टी क्या है? पाक ही पाक है। बहरहाल तमिस खतर पाक, बहरहाल करी गंडिक लटि गड़ कर नियत और बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, इस पर वजू ब्रोट बिस्मिल्लाह पढ़, पर बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। और फिर यहाँ पर ये मारेगा हाथ इस पर। अगर यमन दोन अथन मज गाड़त ज्यादा तो ये फू करके भी उड़ा सकता है, और सुन्नत का तरीका इस तरह है कि ये पर बाजाएगी पढ़नस, तो इस तरह से ये गाड़त को ये बोन। अब याद रखिए, अब इसको क्या करना है? तयम्मुम। पहले ये बाएं हाथ से दाएं हाथ का तयम्मुम करेगा, खोड़े अस्सित कर। अलबत्ता इनको ऊपर उठाना जरूरी है, पालों पेठी करनी क्या, बल्कि इस पे वजू खतर कारण चाहिए। अगर घड़ी लगी हुई है तो घड़ी निकालनी पड़ेगी, अगर कोई मतलब बैंड वैंड लगित या वर्ज पर्ज लगित वो सब निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक बाल बराबर भी ऐसी जगह नहीं रहनी चाहिए जिस पर मसा ना होगा। कैसे करेगा? त्रोन अत तुलन खोड़े अत कर बन साइड कर शुरू की इस पढ़नस,
मगर इस तरह से कि पूरी जगह ये जन मसास गए बाल बराबर भी कोई जगह नहीं रहे कहाँ तक कोहनिया समेत योतान वुजुस मज छालन और कर गलती ये वनो जिमन आम मे वो अक्सर लोग वुजू कर योतान छालन यम नड़ ये वुजू नहीं होता है वुजू इलल मराफिक इलाही दाखिली को ये कोहनी इसमें दाखिल यहाँ तक आपको भिगोना पड़ेगा जरूर और मथुन क्या बल्कि बहना चाहिए पानी सो पढ़ो इंशाल्लाह इंसान वुजू किया बहरहाल यहाँ से तयम्मुम करेंगे इस तरह से कि मतलब कहाँ जाए रूजा इधर यथन मसा गो इत पर दबा कर अब योता ये वो तुलो इत थोत करो इत पर जोड़ समझ आओ हो गया एक अब इस दाएं हाथ से यहाँ से करेंगे इस तरह इधर पर तो अखाड़ा होर अगर क्या आज लगे सुतलो सोरे थोत इत पर करो योड़ मसा और पत फाड़ा योड़ इत पर सोरे कोई साफ फिर यहाँ से खिलाल करेंगे यहाँ से भी गोडनुक आख अब फिर से हाथ मारेंगे किस पर जमीन पर अगर ज्यादा मिट्टी लगी हुई है तो झाड़ेंगे इस तरह से या फूक दोशवे तरीके इस पर तो बनो और ये अच्छा अब क्या करेंगे अच्छा ये गो तरतीब गई थोड़ा गलत पहले तो असल में मुझे करना था चेहरे का मसा गोड असली कत कि बुथिस मसा मगर तथ मज ख्याल था पेशानी के बालों से लेकर यहाँ तक कान की छोटे पूरा गए सोरी और रस निकाल बाकी पहली फिर जब दूसरी मरतबा करेंगे तो करेंगे किन का मसा ये तयम्मुम क्या तरीक और तयम्मुम यम साथ मगलो कर पड़े इसमें पाँव का मसा नहीं है इसमें किसी और चीज का मसा नहीं है बल्कि सिर्फ मसा गौड़ बुथुक पाच कमन यही गुसल के लिए भी है अगर गुसल वाजिब आप या उजुर मतलब अब आब त्रे यह कर मगर नियत कर अम सात गुसल त्राय अथ यथ पे झाड़े अथ अगर ज्यादा तो पहले चेहरे पर मुड़ेगा यह अथ क्या फेरेगा मगर पूरा ये पर नस हेत यह हेत छोड़ने पूरी पर आप जाए तो मसा वाले रोजन फिर दूसरी मरतबा इस पर डालेगा और यहाँ से शुरू करेगा फिर यहाँ से आएगा इस तरह से इसी तरह यहाँ से शुरू करेगा फिर यहाँ से और फिर खिलाल करेगा ये गो अमसन क्या तयम्मुम मुकम्मल ये गो तयम्मुम चीजन हाँ दीवारों पर भी तयम्मुम हो सकता है मगर कौस दीवार साई दीवार नहीं क्या यह दीवार सीमेंट दीवार ना बल्कि इस ब्रोट बोर्ड वाजिब क्योंकि वो भी मिट्टी से ही बनती है कत याद अब तयम्मुम के बारे में एक और बात अहम कत तयम्मुमस मुतलिक यम साथ यह तयम्मुम मकलाओ कर रिवायत में आता है कि अख सहाबी बहरहाल उस सहाबी का मुझे नाम याद नहीं है लेकिन रावी हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला वो रिवायत करते हैं इस हदीस की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हसा फरमो तमो वो शख्स आप सहाबी तमिस जनाबत गुसल क्या क्या फर्ज तो उसने तयम्मुम जब किया तम सोरे पान मथित कत मज तेल लोग पन पान गड़े मज तो दितन दिल गंड लगे अत दिन तमिस गो सोरे मस वस पान वाना सोरे बरन बहरहाल जब रसूलुल्लाह ने उसको देखा तो उन्होंने कहा आपके लिए सिर्फ इतना काफी था यानी अत इशारा से हुआ क्या यानी चौसी सिर्फ कर क्या तयम्मुम उस हदीस में रसूलुल्लाह ने सिर्फ इतना दिखाया इससे इमाम अहमद बिन हंबल ने मसला निकाला है कि तयम्मुम में हम सिर्फ हाथों का तयम्मुम भी कर सकते हैं कि पढ़ने और अहल हदीस युक्ति कारण कोताई अत मगर बाकी जो उलमा हैं और तमाम फुकहा हत्ता कि इमाम अहमद बिन हंबल के शागिर्द भी वो कहते हैं कि नहीं जिन हदीस में रसूलुल्लाह ने ये कहा ये तो सिर्फ उन्हें इशारा किया था असल में जो तयम्मुम का तरीका रसूलुल्लाह ने दिखाया है वो बराबर कहाँ तक है मराफिक तक योतामत ये है तयम्मुम का तरीका आखिरी कत आज के तयम्मुम के तरीके में ये अल्लाह ये बचे यम सात सान खवातीन यम सात निफासु खून निफासु खून तथ खून जब उनके यहाँ विलादत होती है यानी ये बच्चे जवन सान जनान थोमुत यह फार गांड है 40 दोन कर कहें हालांकि ये 40 दिन मैक्सिमम लिमिट है 40 दोहन है ज्यादा को ज्यादा खून ये वरना किसी का खून 2 ही दिनों के बाद ही बंद हो सकता है किसी औरत का खून 3 ही दिनों के बाद 4 दिनों 5 दिनों के बाद बंद यीत्या दह पे तमिस खून बंद गसे उसके बाद उस पर नमाज पढ़ना लाजिम है तमिस पे नमाज पढ़ो क्या फर्ज आप वो नमाज छोड़ नहीं सकती है 2 हक वथित तमिस गुसल कर 3 दो अगर खून को बंद तो वो गुसल कर सकती है 4 हाइस्ट असली कि कहन औरतन मुझ रोजन खून अगर 40 दो पे खून रोज अब उसका एतबार नहीं है उस वक्त भी उसको नमाज ये हाइस्ट लिमिट मगर सान जनाना तो अत कर क्या है ना 40 दोन से नमाज पढ़ी नहीं ये मसला नहीं है अत मज मसला कि कम अज कम ज्यादा से ज्यादा 40 है मगर कोई 3 दिन के बाद ही 4 दिन के बाद ही कोई 10 दिन के बाद पाक यम सात सा पाक गस अमिस पे गुसल वाजिब ये यमिस जनाबत वालिस वाजिब ये जन हेज वाजी लड़की पे वाजिब अमिस क्या कर
इस पर भी गुस्ल वाजिब है, वाजिब मीन जरूरी फर्ज अदा है कि पाक गए, उसको भी उसी तरह से फर्ज मतलब कुल्ली करना, फिर नाक की नरम हड्डी तक पानी, फिर पूरे बदन पर क्या करना, पानी बहाना। अगर वह यह आसे मिसाल के तौर पर अल्ट्रा बची अमिसा सर्जरी आज अक्सर ये बोर्ड ऑपरेशन, अब ये मिसाल में बोर्ड ऑपरेशन आओ, अगर इसको बिल्कुल भी खून नहीं आता है और अक्सर सूरत हाल में ही उस पर एक नमाज भी उस वक्त ये जन माफ नहीं है, तो इस पर अख नमाज तो माफ कहन यह थो याद। अलबत्ता अगर नेचुरली अमिस खून यमन दोहन उसको भी निफास का ही खून माना जाएगा। बहरहाल युथी सह बंद गमिस सात क्या कर गुस्ल कर और गुस्ल के बाद क्या करना है, नमाज पढ़नी है। अलबत्ता यह थो याद ये बच्चे सज विलादत ग चाहे सर्जरी जरिए ग या चाहे नेचुरल गशवे विज अत क्या वन गुस्ल वाजिब गसन गुस्ल ग सर्जरी जन सत बच्चस पे अत क्या माज पे लाजिम तो हुत पर। अलबत्ता नमाज का मसला मैंने बताया क्या है। अच्छा अगर वह तिस खातून आमिस सर्जरी आय होड़ मतलब यमिस पाक गसन वन खून कहें या अक दो या दो गो अमिस खून बंद, अब इसको क्या करना है, अमिस बाज़ाब्त वो पाक गसन, मगर डॉक्टर वोन अमिस टेब वेब लगित अमिस मुश्किल स्नान कर, तो उसको भी इजाजत शरीयत ने दी है कि उस वक्त तो क्या करेगी, ये करे तयम्मुम, और तयम्मुम करके ये पाक हो गई, मगर जब नमाज पढ़नी होगी उस वक्त ये बाज़ाब्ता वुजू करेगी। तम साथ नमाज खतर क्या कर, क्योंकि गुस्ल के लिए उसने तयम्मुम की पाकी हासिल की, अब नमाज के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हाँ ये साथ पता टेब वेब ठीक गसन, अब इसको नए से अब क्या करना पड़ेगा, तिकाज वह रूद तयम्मुम तुम शराइत। बहरहाल क्या मसाइल तयम्मुम इंशाअल्लाह मुस्तान कल हम तयम्मुम के और अहकाम एक दो पढ़ेंगे और बाकी हिस्से आयतों से मुकम्मल। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।